exciting to celebrate a journey that starts even after marriage and to help dreams come true. So we're looking for someone, of course, who has a personality that shines, a confidence. I think जज करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. ये मेरा तीसरा साल है एज अ जज इन मिसेस इंडिया और बहुत लोगों को लगता है कि शादी करने के बाद शायद आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं और फिर आप अपने हस्बैंड, अपने फैमिली, अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने बारे में स्पेशली वुमेन कम सोचना लगते हैं. सो आई माई सेल्फ हैव बिन गिल्टी ऑफ दैट. तो इसीलिए एक यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन मिसेस इंडिया जो मैरिड वुमेन की ड्रीम सपोर्ट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. In terms of कौन होगा मिसेस इंडिया, I'm excited to meet the contestants and I know that the women will be, it'll be challenging because always the women are, it's always very very difficult. I'm very glad कि मैं अकेले जज नहीं हूँ और भी जजेस होंगे और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके बीच में बांटना होगा. आई थिंक कि एक क्वालिटी जिसका हम उसे नाम नहीं दे सकते हैं. इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़रूरी है और खूबसूरत का मतलब है कि अट्रैक्टिव क्वालिटी जहाँ पे आप उस शख्स को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं. आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्वालिटी हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं. और एक चाह, कुछ एक ज़िद, वो अपने लाइफ के साथ कुछ करना चाहती है, अपने आप को साबित करना चाहती है, वो एक उनमें दिखना चाहिए. Thank you so much. We will be making command very very soon. It has been a routine now. It has been a routine now, and I think show feels like incomplete if Soha is not there. And as I mentioned, कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि ऐसी महिलाएं होती हैं जो ऐसा कुछ हासिल कर लेती हैं जिससे आने वाली औरतों को, आने वाली यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलता है. एंड आई थिंक सोहा इज़ वन ऑफ दैट इंस्पिरेशन, वन ऑफ द पर्सनैलिटी जिनको देख के हम सीखते हैं. थैंक यू. आई थिंक वी नीड फिटनेस, आई थिंक ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है. मेंटली फिट, इमोशनली फिट, फिजिकली फिट, उससे मुझे तो खुशी भी मिलती है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. Thank you So much everybody. Want to come out there and shine like the stars they are. So I think that's something amazing that you've done, Moini. But what I think that's more amazing, and the reason I'm here, is because for the last 20 years I've been working with Cancer Patients Aid Association to help underprivileged children fight cancer. And what I love most about tonight's event, what I love most about Moini's organization and all the ladies who are participating tonight is all of them have created genuine social impact. All of them have gone out to raise funds to help children fight cancer. And the incredible news that I'd love to share, and I feel proud sharing, and I think you should be very proud too. I am. Over the last 4 years now, Moini, her organization, all these wonderful ladies who are participating tonight in this competition have helped raise 3 crore rupees to help save more than 350 underprivileged children who are battling for their life against cancer. So thank you so much. Thank and I you. think when you ask me what's the most important thing tonight, I think that's the most important thing tonight, to have a heart of gold, because true beauty lies within you. Thank you so much, Vivek. Thank you. And you've been very kind, you've been very generous. Exactly, this is what we are looking for, and associating with Cancer Patients Aid Association has been an experience within itself. They have given us an opportunity to contribute, to raise some funds for cancer affected kids, and I feel glad, I feel pleasured saying this, that we could do some justice and we could create some difference in the society. Definitely when a personality like Vivek Oberoi join hands, the inspiration and the motivation is different altogether. So yes, again credit goes back to Vivek sir. No, thank you. Thank you so much. All credit is to you and all the lovely ladies who have been participating over the years, and the platform that you've given becomes not only a platform for outer beauty, but a platform for inner beauty also, because true beauty lies in the ability to go out there and help people, especially little children who need their help fighting such a severe illness like cancer. So thank you so much for doing that. Our organization, Cancer Patients Aid Association, is truly filled with gratitude for the kind of support that you and all the wonderful women here tonight have given us. Thank you. Sir, we'd also like to ask you, what is the one thing you'd like to tell our queens tonight?
Well, I think I'd like to say that all of you are here tonight to be beauty queens, which is great. But with the wonderful service that you've done for the children who are fighting cancer, I think all have become queens of hearts. How are you? तो क्या कहना चाहिए मिसेस के लिए जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज को भी जोड़ा गया इसके साथ साथ क्या कहना चाहिए दोबारा सारी चीज़ें हिंदी में यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज मुझे लगता है कि मोहिनी जी ने और उनके जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने एक मंच दिया है इतनी सारी औरतों के लिए अपनी जो उनका एक बचपन का सपना है उसे पूरा करने के लिए साकार करने के लिए अपनी भीतर के जो टैलेंट्स हैं उस टैलेंट को एक मंच दिया एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो चमक सकती हैं जहाँ पे वो सितारे बन सकते हैं एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग लेकिन मेरे दिल को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ बात है जो छूती है वो ये है कि मोहिनी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारी संस्था जो है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन जो पिछले 20 साल से हमने कई हज़ारों लाखों बच्चों की मदद की है जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं और बहुत मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके के हैं जो गरीब किसान के बच्चे हैं उनकी हमने मदद की है और इस मदद में इस मुहिम में मोहिनी जी और आज की सारी जो ब्यूटी क्वींस हैं जो सारी कंपेटिटर्स हैं अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से हमारा सहयोग कर रहे हैं हमारी मदद कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए कि पिछले 4 साल में आपके माध्यम से आपके सारी कंपेटिटर्स के माध्यम से हमने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए 3 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं और इस पैसे से 350 से ज़्यादा नन्ही जाने जिनको कैंसर है गरीब घर के किसानों के बच्चे उनकी मदद हुई है उनकी जानें बचाई गई हैं सो थैंक यू सो मच दिल से शुक्रिया मैं हमेशा ये सोच रखती हूँ और मानती हूँ कि हम सिर्फ ज़रिया होते हैं तो मैं खुद को और इस प्लेटफॉर्म को एक ज़रिया कहना चाहूँगी कि मैं हर साल हज़ारों लेडीज़ को इस संस्था से जोड़ सकी और ये ज़रिया बनकर फ़ंड रेज़ कर सकी और कहीं पे मदद पहुँचा सकी और कहा जाता है कि शादी के बाद बच्चों का जो करियर है वो खत्म हो जाता है हो जाता है लेकिन आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया मिसेस के लिए कुछ कहना चाहिए आपको किसने इंस्पायर किया कहा जाता है कि आपके पास 2 ज़िंदगी होती है और दूसरे का एहसास तब होता है जब आपको पता चलता है कि आपकी एक ही ज़िंदगी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है तो बस मिसेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक्सपीरियंस और उनका एजुकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ हो सकता है तो यहाँ पर ही वो ये अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज़ करती है मोहिनी जी जैसे कहा अभी मिसेस के बारे में कि 2 ज़िंदगियाँ होती हैं मेरा ये मानना है कि हर लेडी के 2 ज़िंदगी के अलावा 2 करियर भी होते हैं और एक करियर ये होता है घर संभालना गृहस्थी संभालना बच्चों को संभालना जब कोविड हुआ था बीच में तो मेरे लिए जीवन में पहली बार एहसास हुआ और अप्रिसिएशन हुआ कि प्रियंका मेरे घर में कितना कुछ संभालती है क्योंकि जब मैं घर पे था तब मुझे सारी चीज़ें नज़र आने लगी कि कितना बिजी रहती हैं बच्चों को किस तरह से सही संस्कार सही वैल्यूज़ के साथ में बड़ा करना उनको प्यार देना एक सुंदर घर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना औरतें जो हैं वो मर्दों से डबल मेहनत करती हैं और मुझे लगता है ये मंच एक अप्रिसिएशन है उस बात का सारी मिसेज जो हैं उन सबको मेरी तरफ से सल्यूट है और जब ब्यूटी के अलावा हम इनर ब्यूटी पे फोकस करते हैं जिनका सिर्फ चेहरे ही नहीं सुंदर हैं बल्कि दिल भी सुंदर हों जो एक्चुअल दूसरों के गरीब बच्चों के लिए कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए इतना अच्छा पहल जो उठा रहे हैं तो उनके लिए आई विश देम नॉट ओनली बेस्ट ऑफ लक फॉर टुनाइट्स कॉम्पिटिशन बट बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ गॉड ब्लेस हाँ 30 जून को मेरी फिल्म कड़वा रिलीज़ हो रही है पिछली बार जो मैंने मलयालम में फिल्म की थी लूसीफर बहुत बड़ी हिट रही उसी टीम के साथ में पृथ्वीराज जो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे उनके साथ में मैंने ये फिल्म बनाई और ओरिजिनली मैं ये फिल्म शायद करने भी नहीं वाला था जब पृथ्वीराज का फ़ोन आया और उसने मुझे कहानी सुनाई मुझे इतनी पसंद आई कहानी इतना मज़ा आया कि मैंने कहा कि वी मस्ट डू दिस फिल्म टुगेदर तो डेटें एडजस्ट करके क्योंकि मैं उस समय
रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स के लिए शूट कर रहा था, तो किस तरह से सारे डेट्स को एडजस्ट करके मैंने ये फिल्म कंप्लीट की है। और बहुत फास्ट टाइम के अंदर बहुत हाई क्वालिटी फिल्म कंप्लीट हुई है, सो वी वेरी एक्साइटेड। Thank you so Thank much, everybody. Thank you so much. नहीं, आई थिंक देखिए, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत दिन के बात करूँ, इससे पहले मैं मिस इंडिया का मैं 2000 में किया था, बट मुझे एक सुनहरा मौका है कि मिसेस इंडिया को जज करने का। तो मैं समझता हूँ कि किसी का करियर कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये तो पब्लिक का परसेप्शन होता। हम लोग ये सोचते हैं कि बस चलो शादी हो गई तो करियर ख़त्म हो गया। उसका मतलब है कि अगर क्रिकेट प्लेयर की शादी हो गई तो वो खेलना नहीं चाहिए। तो द सेम थिंग। नो, आई थिंक मैसेज यही दूंगा कि आई नो मैं समझता हूँ कि वो लोग अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होंगे, और जो भी अच्छा क्वेश्चन आंसर करेगा, आई थिंक दोनों भी ब्यूटी एंड ब्रेन मोर इम्पोर्टेंट। Thank you so much. We were training them. Well, there are a couple of other OTT series that are in the pipeline. One will release in September and one will release next year. हाँ. Well, it's changed completely, क्योंकि जब मैं गई थी इस पैजेंट में तो तभी किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा पैजेंट एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये पैजेंट 1984 से चला आ रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में तभी शादीशुदा तो की बात छोड़ो, लेकिन कोई रिलेशनशिप में भी रहता था तो वो भी वो क्वाइट रखते थे, वो आते नहीं थे बाहर बिकॉज ऑफ दैट इमेज के एक बार आप रिलेशनशिप में हो या शादी हो गई मतलब ग्लैमर फील्ड में आपका करियर ख़त्म। तो मुझे वो जो परसेप्शन था, वो स्टीरियोटाइप था, वो मुझे चेंज करना था। तो जब मुझे मिसेस मॉरिन वाडिया ने कहा कि तुम्हें जाना है, सो आई सेड यस, व्हाई नॉट, बिकॉज क्यों ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर गेटिंग मैरिड अ वुमन शुड नॉट हैव अ प्रोफेशन इन ग्लैमर लाइफ, इन ब्यूटी वर्ल्ड। We definitely have big plans, and it took 3 seasons. So this is the 3rd season that we are conducting tonight, and the last season was conducted in the midst of COVID. Definitely it wasn't easy, but we managed to do it. And after 3 years, definitely the expectations are very high. My batch is getting stronger each year. The competition is getting tougher each year. And I think with each passing year, I see getting closer to Mrs. World crown. And definitely we also have a plan to soon conduct Mrs. World in India. तो जो खुद उस जर्नी से निकला है, जो खुद वो मकाम से निकला है हासिल करके, उसको जी के, और वो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। आई थिंक नो वन इज़ बेटर देन हर टू ट्रेन द लेडीज़, टू गाइड द लेडीज़ एंड टू मेक देम बिलीव, बिकॉज अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हर, एंड दैट्स द रीज़न वाई शी इज़ स्टैंडिंग हियर टुडे विद द क्राउन एंड सैज। ये इन्होंने पहनाया है मुझे 20 साल से। मैंने जब जीती थी तभी 1 साल पहना था, उसके बाद में मेरे बॉक्स में पड़ा हुआ था। इन्होंने शी सेड नो, यू विल वेयर योर क्राउन एंड यू विल वेयर योर सैश, सो इट्स ऑल थैंक्स टू हर दैट आई एम वेयरिंग द क्राउन टुडे। Thank you so much. Thank you so much. Overall personality, I am searching and I'm trying to find people whose speech is coordinated with their thoughts and their heart, and I want somebody who is in sync with these, because I know that that's a strong horse to bet on. Wow. Well, you heard it from the man himself, who has made sure that every queen of ours is looking gorgeous, and now he's going to be the one judging them. And ooh, I can tell you, ladies and gentlemen, that the heat is high. Thank you so much, Raksa. It's been a pleasure to have you on board. Awesome having you here too. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you. Ladies and gentlemen.